Good morning guys, welcome back to our classes. So in today's class we will see a new chapter, that is unit, dimensions and measurement. So this is our second chapter of physics. In first chapter I already told you that we were discussing about the basics of physics, what is physics, branches of physics, and basically a fundamental forces. So in this chapter we will discuss about unit, dimension and measurement. So here I had missed the word dimension. Unit, dimensions and measurement. So before starting our main course, let us understand some of the basic point under this chapter. So first of all we will see a detail about physical quantity. So now we will see what is physical quantity. Physical quantity एक्चुअल में है क्या, ठीक है. सो बेसिकली क्वांटिटी के बारे में तो हम जान चुके हैं, ठीक है, ये हम क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं. तो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, सिंपली वी कैन से द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय द वर्च्यू ऑफ विच फिजिकल हैपनिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है. So I am writing a definition: the quantity which can be measured by the help of which physical happenings can be explained. This is what physical quantity, ठीक है. सो फिजिकल क्वांटिटी की एग्जांपल अगर आपसे पूछे तो बहुत सारे आपने देखा, जैसे लेंथ, ठीक है, मास, टाइम एक्सेट्रा, बहुत सारे, ठीक है. तो दिस आर व्हाट फिजिकल क्वांटिटीज, जिसे मैं मेजर कर सकता हूं और इसके हेल्प से बहुत सारे फिजिकल हैपनिंग्स को एक्सप्लेन कर सकता हूं. जस्ट लाइक एनीथिंग विच इज हैवियर, हाउ कैन वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज हैवियर और लाइटर? बाय मेजरिंग इट्स वेट. एनीथिंग विच इज फास्टर और स्लोअर, हाउ कैन वी से? बाय मेजरिंग इट्स स्पीड और by measuring the time taken to travel, ठीक है. So these are some basic physical quantities. We will see a lot as we are going to carry forward this chapter, ठीक है. Okay, so one more thing I want to say, that physical quantity is based on the measurement of its magnitude, ठीक है. उसका मैग्नीट्यूड कितना है इस पे बेस्ड होता है फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट. सो वी कैन से फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी, ओके, फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको मेजर करना है, किसी का भी फिजिकल क्वांटिटी आपको बताना है, तो आप क्या बोलोगे? 4 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 kg, ठीक है. तो ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं 5 and kg. सो 5 इज व्हाट? मैग्नीट्यूड, and kg is what? Unit. So any physical quantity is comprised of both magnitude and unit. So physical quantity can be written as magnitude and unit, both of them comprise together to form a physical quantity, ठीक है. सो मैग्नीट्यूड को मैं अगर n से डिनोट करूं और यूनिट को u से डिनोट करूं, तो फिर फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी को मैं q से डिनोट कर लेता हूं. सो व्हाट कैन बी राइट in terms of a mathematical expression? I am rubbing this, please write it. I'm sorry. Okay, हो गया होगा.
So we can write q is equals to n into u. ठीक है. Now understand, if we will change the unit of any physical quantity, then the magnitude will change. If I have to say 1 hour, if I'll change the unit, if I must have to say 1 hour is equals to how much second, it means I am changing the unit from hour to second, then the magnitude which was 1 will also change. 1 hour is equal to 60 seconds. So what I have to say is the magnitude, if magnitude changes, then unit also changes, but the multiplication of both of them are constant. ठीक है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे को हमेशा एक कांस्टेंट ही मिलेगा. 1 hour is always equals to 60 seconds. ठीक है. So I can say that physical quantity n1 u1 will be equal to n2 u2 will be equal to n3 u3 will be equal to some kind of constant. ये एक इंपॉर्टेंट आपके पास फॉर्मूला बन करके आता है. रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ठीक है. Now let us move to system of units. Let us move to second topic, system of unit. Now I must explain you that there are many kind of system of unit in which we explain the things. If you read some Indian author, you will see everything, every length will be written in terms of meter, every weight will be written in terms of kilogram, every time measurement will be written in terms of second. If you put up some English author, English I want to say means England or British kind of author, then you will see there is FPS measurement system over there. Foot, pound, second. Now the weight will be calculated in terms of foot, okay, sorry, pound, and length in terms of foot. Okay, so based on this different countries, there are lot of units of measurement, systems of unit of measurement. So I am writing some of the systems. So only we have to see the names of this system. ठीक है. One is CGS system, one is FPS system, one is MKS system, one is SI system. So these are the different kind of system of unit. Please pardon me for a second. Okay, now move on to the abbreviations. We are seeing the abbreviations. What are the full form of this kind of system? So CGS denotes to centimeter gram second. Okay, so simply we can write in terms of CGS, this is centimeter gram second. FPS means foot, pound, second. MKS means meter, kilogram, second. SI means international standard or system of international standard. So I am simply writing international standard system. Okay, so this SI system is followed throughout the whole world. If you have to trade in between two countries, then these two countries should follow SI system. Although maybe the two countries will follow different kind of
system of measurement within their country, but if they want to trade intra country, then they have to follow international system, that is SI system. Okay, so please write it if you want. Okay, I think you must have done it. Our point of consideration will be the CGS1 and SI. We have to see these two system of unit. So, talking about SI system, the quantities are again categorized in two parts. One is fundamental quantity and one is derived quantity. Apart from these two, there is one more supplementary. We'll discuss about that later. So let us understand what is fundamental quantity and what is derived quantity. So any quantity which is the basic, which cannot be subdivided or formulated in some other kind, this kind of formulations are called fundamental quantity. And the quantity which combines together, or we can say, or some fundamental quantities combine together to form a derived quantity. In Hindi I'll explain this. फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? वो क्वांटिटी जो एकदम बेसिक लेवल के हैं, जिसे और डिवाइड या सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, किस उसका कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता, वैसे क्वांटिटीज क्या कहलाते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज. व्हाट अबाउट डिराइव्ड क्वांटिटीज? सो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं? एक या एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिक्स करके एक नया फॉर्मूला बनाया जाता है, एंड दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज. ठीक है. सो देयर आर बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड मैनी डिराइव्ड क्वांटिटीज कैन बी मेड बाय हेल्प ऑफ दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज. सो व्हाट आर दिस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज? लेट अस सी. Length, mass, we have less space, time, temperature. So length denotion, we'll see the denotions after some time. Okay, so let us what are this? Electric current, luminous intensity. Have you heard about this word, luminous intensity? Okay, we'll explain about this also. So these are 6. 7th one is quantity of matter. So these are the 7 fundamental quantities which we have to see. Okay, so let us also see the units which are used for this fundamental quantities. So length is denoted by meter. Mass is denoted by kilogram. Time is denoted by second. Temperature. Now we have seen 2 scales for temperature. We have less space down the bottom, so let us make it very short. So temperature, we have seen Kelvin as well as Celsius. So Kelvin is the basic unit, because why I had explained this in class 9th video also. So Kelvin is taken as the standard one because Kelvin cannot be counted in negative manner, but we had seen some Celsius degrees in negative, like -200 degrees Celsius. Okay,
So Kelvin, for electric current it is ampere, for luminous intensity it is candela. So remember this word, this one must be new for you. For luminous intensity we see candela, and for quantity of matter we had already seen mole. Is it okay? Okay, now we will see some of the symbols which we use for them. Okay, so let us see. Meter, for meter we just write small m, for kilogram kg, for second s, for Kelvin k, for ampere a, for candela we write cd, and for mole we write small m. ठीक है, or we can also write mol, mole, isn't? So we can also write mol, mole. Okay, so please write down this quantities, unit and symbol. So what I was saying, that apart from these 7 fundamental quantities, there are 2 supplementary quantities also. So I am writing the supplementary quantities above over here. Supplementary quantity. So supplementary quantities are solid angle and plane angle. तो इनके बारे में भी हमारे पास जानकारी है कि सॉलिड एंगल हम किसके लिए यूज करते हैं। सॉलिड एंगल हम यूज करते हैं सॉलिड्स के एंगल मेजर करने के लिए, 3D में एंगल को मेजर करने के लिए। और जो हमारा व्हाट इज से प्लेन एंगल, प्लेन एंगल किसके लिए यूज होता है? प्लेन में, किसी प्लेन में एंगल को मेजर करने के लिए। ठीक है, सो सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? स्टीरेडियन। एंड फॉर प्लेन एंगल वी सिंपली राइट रेडियन। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं? तो स्टीरेडियन को एसआर से डिनोट करते हैं, सिंपली वी राइट एसआर, एंड फॉर रेडियन वी राइट आरएडी, रेडियन। Okay, so please write this fundamental quantity as well as 2 supplementary quantities. Okay. Over? Okay. So I am again cleaning all stuff. So let us see some derived quantities. Let's have some basic knowledge about this too also. So what I said, a combination of 2 or more fundamental quantities. Just like mass is a fundamental quantity, okay, into acceleration. Acceleration is again, let us see first acceleration. Acceleration is what? Velocity upon time. Again velocity is derived. How? Let us see the formula of velocity. Velocity is equals to displacement upon time. Displacement is measured in length, meter, and time in second. So combination of 2 fundamental gives you a derived unit. So this is velocity is derived unit. Again derived plus for fundamental gives you again derived unit. Again mass, fundamental, and some kind of derived gives you a derived unit. So every formula what you see, impulse, velocity, mass, work, anything, energy, everything is what? A derived quantity. Okay, so if you want to write some examples under derived quantities, you can write velocity, force, work, energy, acceleration, etc. A lot is there. So these are what? Derived quantities. Please write this. Okay, so after this we'll see again 2 different kind of quantities. Now
there is a mathematical naming of quantity, whether the quantity will be scalar or it will be vector. So there is again division of quantities as scalar and one is vector. So the quantities which have only magnitude will be called scalar, and the quantities which have magnitude as well as direction, these are called vector quantities. Can you give some example of scalar quantity? Okay, let me explain you what are scalar quantities. Length, mass, time, these are scalar quantities. How these are scalar quantities? If we are saying 2 meter, it means we have only magnitude 2, but we don't know in which direction we have to measure 2 meter. सिर्फ हमको क्या पता होता है? मैग्नीट्यूड पता होता है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात कर लूं, ओके, वन मोर, डिस्टेंस भी कह सकते हैं। वही बात कर लूं वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, जिसके बारे में हम क्लास 9th में पढ़ते हुए आए हैं। Displacement, what is displacement? The shortest distance between initial and final point is called displacement. Now we know the direction where we have to go. We have to go from, the displacement is always a straight line and the shortest distance. ठीक है, हमें सबसे छोटा पाथ लेना और सीधा पाथ लेना है, that is called displacement. तो यहां पे हमको डायरेक्शन के बारे में भी जानकारी है। बात करें वेलोसिटी की, बात करें एक्सीलरेशन का, तो इन सभी का क्या होता है? डायरेक्शन होता है। एक्सीलरेशन हो रहा है तो ऑलवेज इंक्रीजिंग, वी नो, ठीक है। सो व्हेनेवर वी हैव द डायरेक्शन पार्ट, देन वी कैन से द क्वांटिटी इज वेक्टर. Now why I am explaining you this scalar and vector? Because the addition and subtraction of this kind of quantities are a bit different. ठीक है, जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा वो स्केलर क्वांटिटी के लिए अलग रूल से होगा और वेक्टर क्वांटिटी के लिए अलग रूल से होगा। आप देखेंगे इसे, ठीक है, आगे जाते जाएंगे तो स्केलर और वेक्टर को और मैं अच्छे तरीके से डिराइव करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एंड एक और चीज, अगर आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में जाना है, ठीक है, या फिर फिजिक्स के मेथड में आपको समझना है स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, तो आपको मैं बता दूं, जो एंगल के साथ चेंज होने पे अपनी वैल्यू को चेंज कर लेता है दैट इज कॉल्ड वेक्टर, और जो एंगल ट्विस्ट करने पे उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होती, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती, वैसे क्वांटिटी क्या कहलाते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहलाते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। कई फिजिकल क्वांटिटी में आपको इसी स्टेटमेंट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ठीक है। नाउ अब बात आ जाती है डायमेंशंस की, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन के फॉर्म में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखना। सो लेट अस सी सम ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज. यू हैव टू वर्क ऑन अ लॉट बिकॉज you will see maybe one question in your competitive examination. In your home board examination, you are going to see a lot of questions from this chapter. Okay? At least in your quarterly and half yearly. Okay. What I was saying? Dimensional formula. So let us see some of the dimensional formula for length. Always okay. सबसे पहले आपको बता दूं कैसे लिखते हैं. So बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला में मास, लेंथ और टाइम आपके पास रहेगा. ठीक है.
और इन क्वांटिटीज को आपको इससे स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसा क्लोज करके रखना है। जहां पे भी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है उसके पावर में आप 0 डाल दीजिए, बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 विल गिव्स यू 1। ठीक है, सो जस्ट लाइक लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो MLT। ठीक है, मास कुछ है नहीं, टाइम कुछ है नहीं, सिर्फ लेंथ के पावर में 1 को लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, एक बराबर। सो वी कैन से M0L/T0। ओके, व्हाट अबाउट मास? So now we have mass. So write MLT. We have only mass, no length, no time. Okay. So we have time. What will be the dimensional formula for time? So we have no mass, no length, only time. So 0, 0, 1. Okay. Now tell me the dimensional formula for velocity. Now we can make a lot of dimensional formula with the help of these three. Okay, so basically to make any dimensional formula you have to go through that 7 fundamental quantities and 2 supplementary also. Okay, so let us see velocity. What is the formula for velocity? Velocity is displacement upon time. Displacement is measured in length. Displacement is what? A kind of length, and time is what? T. So t के पावर में यहां पे 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पावर -1 हो जाएगा। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला? LT-1। सो आई हैव टू राइट MLT। ठीक है, m कुछ है नहीं तो 0, L1 है और t -1। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन? ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए, और आप इतने बार इसे बना लीजिए कि आपको सब कुछ याद हो जाए, रट्टा हो जाए। ठीक है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, पावर, वर्क, ये सारे बार बार आपके सामने आते रहेंगे ये फॉर्मूलेस। तो इनके वैल्यूज तो आपको एकदम रट्टा मार करके याद ही कर लेना है ना। व्हाट इज वेलोसिटी? Velocity is what? Change in velocity, sorry, acceleration we are talking about. Change in velocity upon velocity. So change in velocity is also a kind of velocity. Change in velocity मतलब क्या? 40 किलोमीटर पर आवर माइनस 20 किलोमीटर पर आवर, तो 40 माइनस 20 करने के बाद क्या आएगा? 20 किलोमीटर पर आवर आएगा ना। सो दो वेलोसिटीज को माइनस करने के बाद भी क्या आता है? वेलोसिटी ही आता है। तो सिंपली आई एम राइटिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको पता है क्या है? LT-1, और टाइम का t, और ये t के पावर में 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 प्लस -1 -2। सो व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला? m कुछ नहीं है, M0 L और t -2। क्लियर है? लेट अस सी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। फोर्स का क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का क्या हो गया? m, और एक्सीलरेशन का अभी निकाले, क्या है? LT-2। M0 है तो उसको छोड़ दो, आ गया फॉर्मूला फोर्स का। ठीक है, और भी फॉर्मूलेज आप डिराइव कर सकते हैं, जस्ट लाइक इंपल्स का आपसे पूछा गया, इंपल्स का क्या होता है? तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है? F del t। ठीक है, डेल्टा टी इज व्हाट? टाइम। एंड फोर्स का हमको पता है क्या होता है? MLT-2, अभी ये ऊपर में डिराइव किया, और टाइम का एक t और लग जाएगा, तो ये t के पावर में 1 है, तो -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? -1। सो सिंपली आई कैन राइट ओवर हियर -1। तो ऐसे ही आपको फॉर्मूले से डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, बहुत सारे हैं, जैसे मैंने आपको बोला पावर का बताइए, पावर का, तो पावर का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, और वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स का क्या होता है? MLT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा? L, और टाइम का क्या हो जाएगा? T। इसे जमा लो, M L के पावर में 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? M L के पावर में 2 और T के पावर में 1 है, उधर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1, तो -2 -1 -3। सो ML2T-3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इम्पल्स। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है? फॉर्मूलेस बिल्डअप करना है। ठीक है, अच्छा कुछ और देखना चाहते हैं? और दिखा देता हूं। ओके, आगे के चैप्टर्स में हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे
जैसे कि 8 हो गया ना, 9 सरफेस टेंशन, surface tension. So surface tension is what? Force acting per unit length. ठीक है, आगे आप इसका क्या है सरफेस टेंशन ये सब जानेंगे, अभी फॉर्मूला देख लीजिए। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सो फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है क्या है, mlt-2 अपॉन लेंथ का l हो गया। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये सिंपली यहां से यहां काट लो तो क्या हो गया mL0t-2। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब एक और फॉर्मूला आएगा आपके सामने, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूं। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो स्ट्रेस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है mlt-2। एरिया का क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या ब्रेड्थ भी तो लेंथ में ही नापते ना, तो लेंथ इंटू लेंथ सिंपली बोल दिए, तो एल स्क्वायर हो गया, ऊपर जाएगा तो -2, ये +1 -2 क्या आएगा -1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ml-1t-2। ठीक है, एक और फॉर्मूला आपको बता दूं, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो चेंज इन लेंथ भी तो लेंथ ही होगा और ओरिजिनल लेंथ भी लेंथ होता है, तो लेंथ से लेंथ कट जाता है, ये है नो डायमेंशन। तो कुछ ऐसे क्वांटिटीज भी होते हैं जिनके डायमेंशन नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज जो है आपके लिए होमवर्क है कि कुछ ऐसे डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में लिखिए जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता। एक तो मैंने आपको बता दिया स्ट्रेन, ठीक है, एक और बता देता हूं एंगल, और आपको बता देता हूं जितने भी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, जिनका वैल्यू न्यूमेरिक होता है, ऐसे कांस्टेंट जिनका वैल्यू न्यूमेरिक होता है, ठीक है, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, आगे और एक्सप्लेन करते चलेंगे और देखेंगे इस फॉर्मूलेस तो और आपको एक्सप्लेन होगा। ठीक है, अब जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि पोटेंशियल का क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, सपोज मैंने आपको बोला पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। पोटेंशियल तो आपको पता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। सो वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज इज व्हाट, पोटेंशियल। ठीक है, और वर्क डन का तो फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता तो फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लीजिए, आप डिराइव कर सकते हैं आसानी से। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज तो हमको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT, फॉर्मूला पता है ना। सो दिस इज व्हाट, IT। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, mlt-2। ठीक है, और D डिस्प्लेसमेंट लेंथ के टर्म में तो L लिख लिया। ठीक है, I क्या होता है, करंट होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला A, और टाइम के लिए T। ठीक है, अब फॉर्मूले को बनाइए। ठीक है, L प्लस L क्या हो गया, L स्क्वायर। सो mL2T, अब ये ऊपर जाएगा तो -1, तो -2 -1 -3। ठीक है, और A ऊपर जाएगा तो -1, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका पोटेंशियल का, mL2T-3A-1। तो याद रखिए जो mLT के टर्म में जितने भी मैंने फिजिकल क्वांटिटीज लिखे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे क्वांटिटीज जिसमें लेंथ, मास, टाइम के अलावा आपका करंट हो गया, कैंडेला हो गया, मोल हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें अगर यूज होती है तो फिर वो इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि ये यहां पे एक एक्स्ट्रा लग गया आपका एम्पियर। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमने क्या किया इस वीडियो में, काफी कुछ हमने देखा, डायमेंशनल फॉर्मूला बेसिक हमने काफी कुछ सीख लिया है अब। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर से हम फिजिकल क्वांटिटीज का यूज क्या है, क्या करते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज से, तो इसके मैं आपको 4 यूजेस बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसके 4 यूजेस बताऊंगा, और वो 4 यूजेस, ठीक है, और फिर एक हमारा एरर वाला पोर्शन बच जाता है।
ठीक, तो ये 2 टॉपिक और इसके बाद ये हमारा चैप्टर कवर अप हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्या है, तो आने वाले दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एंड डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला पे आप वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके पास कोई रिफ्रेशर होगा और मे बी एनसीईआरटी का भी बुक होगा, उसमें भी n नंबर ऑफ आपके पास फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। तो फॉर्मूले को क्लास 9th और 10th के अपने कॉन्सेप्ट से सारे फॉर्मूलेज को याद करिए और उन फॉर्मूलेज का डायमेंशनल फार्मूला बनाने की कोशिश करिए। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही हम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।